See here. Hari owes Ram rupees how much? 2000. On 1st April 96. 1st April. Now this is not a transaction. The transaction has taken place in the previous period. 1st April there is a balance, isn't it? How much you have to take? Hari से कितना लेने का है? 2000. From 1st April 96 to 30th June 96, the following further transaction took place between Hari and Ram. On April 10th, Hari buys goods for worth rupees 5000 from Ram. On May 10, Hari receives cash loan of rupees 10,000. Hari को loan दिया. Then on June 9th, Hari buys goods of rupees 3000. तो Hari is already receiving. पहले 2000 लेना था, फिर हरि ने 5000 का माल लिया, फिर 10,000 का माल लिया और 3000 का माल लिया. Hari pays the whole amount together with interest at 15% to Ram on which date? 30th June. 30th June को उसने आके पूरे पैसे दिए with interest. Calculate the interest payable on 30th June by average divided method. Now see here, 1 minute. There is a due date. Due date is a date on which debtor is supposed to pay. If he pays after due date, then interest is charged from the day next to due date. Example, if due date is 5th May, interest will be charged from 6th May, isn't it? Following or not? Now due date दे जिस दिन पैसा देना चाहिए उसको, उसके बाद डिले हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा. See, for example, he took goods of rupees 5000 on 10th of April. Now when he has taken goods of 5000 on 10th of April, if he is allowed 1 month credit, then he is supposed to pay on 10th of May, and the interest will start from 11th of May. But if due date is not given, then he is supposed to pay on the same day or not. यहाँ पे उसको क्रेडिट पीरियड दिया है क्या हमने? एक महीना कुछ बोला है क्या? हरी को हमने माल बेचा कितने में? 5000. He is supposed to pay immediately when there is no credit period, so he is supposed to pay immediately. No, he is supposed to pay immediately. Immediately pay करने का उसको. नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट कभी से लगेगा? 11 से इंटरेस्ट लगेगा. तो ड्यू डेट क्या है? 10 ड्यू डेट है और 11 से इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट नेक्स्ट डे से लगता है कि नहीं? Here also he has taken a loan from 10,000. No, so from the 17th onwards he will start paying interest, including 17th. Here he will start paying interest on which date? 9th 10th of June. 9th जून को लिया ना उसने. अगर 9th जून को पैसा लौटा दे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, पर 10th जून को देगा तो कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? एक दिन. Now Hari is paying on which date? 30th June. Now Hari also owed 2000 on which date? 1st April. So what we will do is that see here, we will have due dates, then amount, calculation of days from 0 date, then number of days from, then product. Okay, 1 minute, okay.
Now, first thing is very important. Listen here. First amount due is 2000. Now, what will be the due date? Most of you will say 1st April. If it is 1st April, you will charge interest from which date? 2nd April. But this is not a transaction on 1st April. It's the opening balance on 1st April. No, it's a opening balance of 1st April. Say again. अगर 1st April ड्यू डेट है तो हम लोग इंटरेस्ट कभी से चार्ज करेंगे? 2nd April से शुरू करेंगे. ओके. Now this is not a transaction on 1st April. अगर ये 1st April को ट्रांजेक्शन होता तो हम बोलते 1st April ड्यू डेट है और 2nd से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा. यस और नो? बट ये ट्रांजेक्शन नहीं, ये क्या ओपनिंग बैलेंस है 1st April का. क्या ये ओपनिंग बैलेंस? इसका ट्रांजेक्शन कभी हुआ होगा? लास्ट ईयर हुआ होगा कभी? लास्ट ईयर हो सकता है 31 मार्च को हुआ हो सकता है 30 मार्च को हो सकता है 28 फेब को भी हुआ हो सकता है 15 फेब को भी हुआ हो. लास्ट ईयर ट्रांजेक्शन हुआ था इसका ओपनिंग बैलेंस का. ऑन दैट ट्रांजेक्शन ही मस्ट हैव पेड इंटरेस्ट लास्ट ईयर अप टू विच डेट? 31 मार्च तक इंटरेस्ट दिया है. दिस ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस इन विच ईयर? Last year. So in last year, suppose the transaction had taken place on 15th of Feb. So from 15th of Feb to 31st March, he has paid interest. तो इस साल में इंटरेस्ट कभी लगने वाला है? 1st April से कि 2nd April से? 1st April से लगेगा. अगर लास्ट 15 फरवरी को ट्रांजेक्शन हुआ था तो लास्ट ईयर इंटरेस्ट लगा होगा. कब तक लगा होगा? 31 मार्च. तो आज इंटरेस्ट कहां से लगने वाला है? 1st April से. तो अगर मैं ड्यू डेट 1st April डालूंगा तो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं 1st April डाला यहां पे 1/4 तो इंटरेस्ट कहां से लगेगा? 2nd से. मुझे चाहिए इसका इंटरेस्ट कहां से लगना चाहिए, तो ड्यू डेट क्या डालूंगा मैं? 31st मार्च. गॉट दिस? 31st मार्च 96 और 95? 96. फॉलो दिस? ये समझा पॉइंट? 96 समझा है पॉइंट? Why I did not write 1st April? If transaction was on 1st April, I would have very well written 1st April. But ये ट्रांजेक्शन कभी हुआ है? लास्ट ईयर. उसमें इंटरेस्ट कहां से लग चुका है? कहां तक लग चुका है? 31st तक लग चुका है. तो अब इंटरेस्ट कहां से लगेगा? 1st से लगेगा. तो 1st से लगने वाला इंटरेस्ट तो फिर ड्यू डेट क्या होगी? 31st तक हो चुका है ना? विदाउट इंटरेस्ट 31st मार्च तक है कि नहीं? अभी 1st से लगेगा. अगर 7th को ट्रांजेक्शन तो इंटरेस्ट कहां से लगता है? 8 से. पर अगर 1st से इंटरेस्ट लगने वाला है तो ड्यू डेट क्या होगी? 31st मार्च. ओके. वेरी इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग तो है ही, पूरे चैप्टर इंटरेस्ट है. घड़ी घड़ी इंटरेस्ट आ रहा है ना? फिर 16/5 क्या 6 सब ड्यू डेट है कि नहीं? देन और कौन सा ड्यू डेट है पता? लास्ट वाला 96 अमाउंट्स कितने बोलो? 5000 देन 10,000 देन. ओके. नाउ विच इज अ जीरो डेट? जीरो डेट बी व्हाट? 31st मार्च है कि नहीं? 31st मार्च 96. फॉलो दिस? यस और नो? हाँ कि नहीं? इसको देखो, इसको विदाउट इंटरेस्ट पे करना है ना. सुनो लिसन हियर. ड्यू डेट्स मतलब दोस डेट्स up to which there will be no interest. If you pay on that date there will be no interest. नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट चला हो जाएगा. तो अगर इसको इंटरेस्ट नहीं भरना है ना तो इसको ये तारीखों पे पेमेंट देना चाहिए ना. 1st April को नहीं पे करना चाहिए. ये 1st April को नहीं, कभी भरना चाहिए इसको. 31st तक इंटरेस्ट लग चुका है कि नहीं? अगर एक को दिया तो फिर एक दिन को और इंटरेस्ट लग जाएगा ना. ओके. जीरो डेट इज 31st मार्च 96. नाउ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम जीरो डेट क्या होगा यहाँ पे? 0. देन 10. यहाँ पे 30 plus 16 46. then 30
प्लस 31 प्लस 9 कितना होता है 70 ईयर 10 0 फॉलो दिस ना प्रोडक्ट क्या होगा प्रोडक्ट क्या है 0 देन 50,000 okay then 4,60,000 then 2 lakh टोटल टोटल कितना है 7 लाख 720 क्या है टोटल है कि नहीं ना equated period total of this amount is how much 20,000 here equated period is 7,20,000 डिवाइड बाय कितना होगा 36 days then एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू क्या 31 मार्च प्लस 36 days तो दैट इज 6th ऑफ मे ना अप्रैल में कितना दिन है 30 मई में 6 तो 6th में 96 पक्का now he is paying on which date but Hari is paying on which date 30th June therefore interest will be charged from which date हाँ if he pays on 6 June को 6 को मैं पे किया तो interest will be charged for the period 6 May to हाँ गिनने का कहाँ से मई में कितने दिन हाँ 6 are gone हाँ so you have on 25 days you know 7th is the first day 1 2 3 4 5 6 नहीं गिनने का then June all 30 days no including 30th June तो total कितना 55 days interest charge will be कितना है 20,000 into 15 divided by 100 into 55 divided by 365 और 366 बोलो बच्चों कितना होगा 450.8 no that is rupees 451 follow this 6th 7th एक पहला दिन ना 7th पहला दिन है अगर 7 को लगा तो एक दिन का इंटरेस्ट 8 को लगा तो 2 दिन का तो मई में कितने दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा 25 1 2 3 4 5 6 का नहीं लगेगा 6 का नहीं लिया ना मैंने 25 दिन लिए तो 7th से ही चालू किया है हाँ 6 से होगा भाई 6 के बाद लगेगा ड्यू डेट 6 है उसके बाद आपका मीटर चालू हो जाएगा इंटरेस्ट का तो 7 को दोगे तो एक इंटरेस्ट एक दिन का लेके आना 8 को दोगे तो 2 का लेके आना 6 का 31 को दोगे तो 6 दिन माइनस करके 25 का लेके आना ओके तो 7 से ही चार्ज किया ना ओके फॉलो दिस एनी डाउट्स